ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ? ਇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ number of protons or electrons in a neutral atom। ठीक है, it is equal to the number of protons or electrons in a neutral atom। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਜੇ ਐਟਮ ਨਿਊਟਰਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਹੋਊਗਾ ਉਨੇ ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਨੇ ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਸੋਡੀਅਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਇਹਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 11। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 11 ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ, 11 ਹੀ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ 12। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 12 ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ, 12 ਹੀ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹੈ। ਚੱਲਾਂਗੇ। ਆਕਸੀਜਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 8। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 8 ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ, 8 ਹੀ ਪ੍ਰੋਟੋਨ। ਜੇ ਐਟਮ ਨਿਊਟਰਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ। ਬਟ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਟਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਪਾਤਾ, ਸਪੋਜ਼ ਐਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਐਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰਤਾ। ਕੀ ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਰਹੂਗਾ? 11 ਹੀ। ਆਈ ਗੱਲ ਸਮਝ? ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿਣਗੇ? 11 ਹੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ? 10। ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰਤਾ। ਆਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਬੇਟਾ? ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ, ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਚੇਂਜ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਸਪੋਜ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਪਾਤਾ। 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰਤੇ। ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਰਹੂਗਾ? 12। ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿਣਗੇ? 12। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ? 10। ਆਈ ਗੱਲ ਸਮਝ? ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ, ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 1। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਜੇ ਐਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਤਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰਤਾ। ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਹੂਗਾ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਵੀ ਇੱਕ ਰਹੂਗਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 0 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਉੱਪਰ 2 ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਤਾ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇਹਨੇ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕਰ ਲਏ। ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਤਾਂ 8 ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? 10। ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿਣਗੇ? 8। ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਨੈਵਰ ਚੇਂਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਰਜ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਚੇਂਜ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕਰ ਲਏ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਲੌਸ ਕਰਤੇ। ਆਈ ਗੱਲ ਸਮਝ? ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਮਾਸ ਨੰਬਰ। ਇਹਨੂੰ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮਾਸ ਨੰਬਰ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਏ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਸਮ ਆਫ protons and neutrons। ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਤੇ ਨਿਊਟਰੋਨ ਦੇ ਸਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? P plus N। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਬੇਟਾ? P plus N। ਸਪੋਜ਼ ਆ ਸੋਡੀਅਮ ਹੈ, ਇਹ ਲੈਟਿਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਨੈਟਰੀਅਮ ਹੈ। ਸੋਡੀਅਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਟਿਨ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਨੈਟਰੀਅਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 11। ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 23। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਲਿਖਦੇ ਹੈ ਉਹ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ Z ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਲਿਖਦੇ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨਿਊਟਰੋਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਆਪਾਂ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ? 23। ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਕਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਤੇ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਿਊਟਰੋਨ ਆਪਾਂ ਕੱਢਨੇ ਆ,
तो न्यूट्रॉन किन्ने आ गए 23, आ इधर चल जाओ माइनस हो जाओ 11, किन्ने आ गए न्यूट्रॉन्स 12। ठीक है, शॉर्टकट च मास नंबर चो जो मैं एटॉमिक नंबर सबट्रैक्ट करदा तो की आ जाएंगे तुहाडे न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। क्लीयर है बेटा। तो आप इसकी हैल्प नाल इलैक्ट्रॉन प्रोटोन ते न्यूट्रॉन कढ़ने आ गए आपां नूं। नैक्सट टॉपिक देखो आइसोटॉप्स। की होंदे आइसोटॉप्स? एटम्स of same element having same atomic number but have different mass number are called आइसोटॉप्स। इको ही एलीमेंट के एटम्स है, ठीक है, जिन्हों का एटॉमिक नंबर सेम होगा, मास नंबर अलग अलग होगा। जे एलीमेंट सेम होगा तो अंडरस्टूड है बेटा एटॉमिक नंबर सेम ही होगा। दो अलग अलग एलीमेंट का एटॉमिक नंबर अलग अलग होंगे, दो जे इको ही एलीमेंट के एटम है तो एटॉमिक नंबर सेम होगा। ठीक है, जिमें हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप है, प्रोटीयम, ड्यूटीरियम एंड ट्रीटियम। मैं इतने एच भी पा सकता, इतने भी एच पा सकता। इट मीन तीनों जोड़े है आइसोटॉप हाइड्रोजन के बने हुए एलीमेंट सेम है तीनों च। ठीक है, तो तीनों का एटॉमिक नंबर इस करके आटोमैटिकली सेम है, मास नंबर की है डिफरेंट है। आई गल समझ। इनू प्रोटीयम कहते हैं पहले नू, सैकेंड नू ड्यूटीरियम कहते हैं, तीसरे नू ट्रीटियम कहते। ट्रीटियम इन्हां चो रेडियो एक्टिव है। क्लीयर है बेटा। ये न्यूट्रॉन कोई नहीं है, 1 माइनस 1 न्यूट्रॉन 0 है। ड्यूटीरियम च 1 होएगा न्यूट्रॉन, ट्रीटियम च 2 होणगे, है ना। पर न्यूट्रॉन फाइंड आउट कर सकते नाल नाल। इन्हां तीनों च प्रोटोन किन्ने है? 1। सब का एटॉमिक नंबर सेम है, प्रोटोन इस भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। इट मीनस मैं इन्होंने एवं भी कह सकता जिन्हों च प्रोटोन की गिनती तो सेम हो बट न्यूट्रॉन की गिनती डिफरेंट हो, उन्होंने की कहने आप आइसोटॉप्स। ठीक है, तो आइसोटॉप की एक होर डेफिनेशन बन सकती है। लगभग हर एक एलीमेंट के आइसोटॉप्स होंगे, कार्बन 6, 12, 6, 14। ठीक है, कार्बन के 2 होंगे मेन, 6, 12 ते 14। ठीक है, लगभग हर एक एलीमेंट के आइसोटॉप्स होंगे बेटे। ठीक है, चलिए अगे। नैक्सट है आइसोबार्स। ये उल्ट है आइसोटॉप दा। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स having same mass number but have different atomic number are called isobars। अलग अलग एलीमेंट के एटम्स जिन्हों का मास नंबर सेम हो बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो। ठीक है, वैसे तो अंडरस्टूड है जो डिफरेंट एलीमेंट्स के एटम है तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट ही होगा, सेम हो ही नहीं सकता। एग्जाम्पल बेस्ट है जी आर्गन 18, कैल्शियम 20। ये 2 अलग अलग एलीमेंट के एटम है, ये आर्गन एलीमेंट का एटम है, कैल्शियम एलीमेंट का एटम है। दोनों का मास नंबर की है? सेम है 40, 40। तो इन्होंने दोनों की कह सकते आप आइसोबार्स। क्लीयर बेटा। नैक्सट देखो आइसोटोन्स। की होंगे आइसोटोन्स? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स
having same number of neutrons are called isotones। ठीक है, उन्होंने की कहा जाता है आइसोटोन्स। अलग अलग एलीमेंट के एटम जिन्हां च न्यूट्रॉन की गिनती की होवे सेम होवे। ठीक है, एग्जाम्पल लेना मैं कार्बन 614 कार्बन का आइसोटॉप यूज़ किया इतने मेनली 12 वाला होंगे। नाइट्रोजन 715 ऑक्सीजन 816 नाइट्रोजन का भी वैसे जनरली 14 होंगे इतने आइसोटॉप यूज़ किया है। ठीक है, चलिए अगे हुण इन्हां च न्यूट्रॉन कढ़ने हैं कि किन्ने है हुणी पढ़ाया सी 14 चो जो आप 6 सबट्रैक्ट कर दिए मास नंबर चो एटॉमिक नंबर सबट्रैक्ट कर दिए तो न्यूट्रॉन आ जाते हैं। किन्ने है 8 ये भी किन्ने है 8 ये भी किन्ने है 8 तिना च न्यूट्रॉन किन्ने है बेटा सेम है 8 8 है। इट मीनस इन्हों की कह सकते आप आइसोटोन्स। नैक्सट है आइसो इलैक्ट्रॉनिक्स। आइसो इलैक्ट्रॉनिक्स ठीक है, नाम तो पता लगता आइसो मैंने होंगे सेम एक चीज़ सेम होएगी। इलैक्ट्रॉनिक्स मतलब इतने इलैक्ट्रॉन की गिनती सेम होएगी। एटम्स और आयंस हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स are called iso electronics। वो एटम या आयन जिन्हां च इलैक्ट्रॉन की गिनती सेम होगी उन्होंने कहने आप आइसो इलैक्ट्रॉनिक्स। एग्जाम्पल लेने Al3 पॉजिटिव Mg2 पॉजिटिव Na पॉजिटिव नियॉन F नेगेटिव O2 नेगेटिव N3 नेगेटिव। ठीक है, चलिए अगे एल्यूमीनियम का एटॉमिक नंबर कितना होंगे बेटा 13 3 पॉजिटिव का मतलब इन्हें 3 इलैक्ट्रॉन लूज करते तो किन्ने रह गए इलैक्ट्रॉन 10। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होंगे 12 इन्हें 2 इलैक्ट्रॉन लूज करते किन्ने रह गए 10। सोडियम पॉजिटिव सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है इन्हें 1 लूज करता 10। नियॉन का होंगे ही 10 है एटॉमिक नंबर तो 10 ही इलैक्ट्रॉन होंगे। फ्लोरीन का 9 होंगे एटॉमिक नंबर इन्हें 1 गेन कर रखे है 10। ऑक्सीजन ने 2 गेन कर रखे है 10। नाइट्रोजन ने 3 गेन कर रखे है 10। ठीक है, हर एक को कितने इलैक्ट्रॉन है ईच कंटेन 10 इलैक्ट्रॉन्स दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड आइसो इलैक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, अगे काम आएगा ये। नैक्सट देखो टर्म आइसोस्टर्स। आइसोस्टर्स की होंगे आइसोस्टर्स molecules having same number of atoms as well as same number of electrons are called isosters। उन्होंने की कहने आप आइसोस्टर्स। मॉलीक्यूल्स वर्ड ध्यान रखना मॉलीक्यूल वो मॉलीक्यूल जिन्हां च एटम की गिनती भी बराबर होवे ते इलैक्ट्रॉन की गिनती भी बराबर होवे उन्होंने कहने आप आइसोस्टर्स। एग्जाम्पल देखो एक N2 ले लिया एक CO2 ले लिया। ठीक है, इस नाइट्रोजन एलीमेंट के 2 एटम है ऑक्सीजन एलीमेंट का 1 एटम है टोटल कितने एटम है 3। ठीक है, 3 एटम्स है। CO2 कितने एटम है कार्बन एलीमेंट का 1 है ऑक्सीजन एलीमेंट के 2 है ये भी 3 है तो दोनों च एटम की है इक्वल है। दूसरा इलैक्ट्रॉन नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 7 एक एटम को 7 इलैक्ट्रॉन है 2 को कितने हो गए 14। ऑक्सीजन का 8 है एटॉमिक नंबर तो ये 8 इलैक्ट्रॉन है टोटल कितने हो गए 22। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है 6 इलैक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 है इक्वल 8 इलैक्ट्रॉन है 2 को 16
ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ 22। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਐਟਮ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਆਈਸੋਸਟਰਸ। ਇਹ 'ਚ ਜਿਹੜੀ N2 ਹੈ ਲਾਫਿੰਗ ਗੈਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਰੋਂਦੂ ਜਿਹਾ ਦੋਸਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ, ਐਂ ਲੱਗੂ ਪਾਗਲਖਾਨੇ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਰਮ ਰਹਿ ਗਈ ਆਈਸੋ ਡਾਇਆਫਰਸ, ठीक है, आइसो डायाफर्स, एटम्स हैविंग सेम न्यूट्रॉन माइनस प्रोटोन। डिफरेंस की होवे जिन्हां च न्यूट्रॉन माइनस प्रोटोन दा सेम होवे, आर कॉल्ड आइसो डायाफर्स। उन्होंने की कहने आप आइसो डायाफर्स, ठीक है। जिमें एग्जाम्पल लेना है फिर समझ आएगा। एक यूरेनियम है 92-235, ठीक है। एक ले लें मैं थोरियम 90-231, क्लीयर है। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿਹਦਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਨਿਊਟਰੋਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਟਰੋਨ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਓ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਲਓ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੇਮ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਕਿੰਨੇ ਹੈ 92। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਕਿੰਨੇ ਹੈ 90। ਨਿਊਟਰੋਨ ਕੱਢਣੇ ਸਿੱਖੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ। 235 'ਚੋਂ ਜੇ ਮੈਂ 92 ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਨਿਊਟਰੋਨ 143 आ जाएंगे, करके देख लियो। आई 231 चो 90 माइनस करूँगा तो इतने न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे 231 माइनस 90 141। इतने न्यूट्रॉन 141 है, इतने 143 है। हुण न्यूट्रॉन ते प्रोटोन च डिफरेंस कैलकुलेट करना है जिमें अपनी डेफिनेशन है ना। तो न्यूट्रॉन माइनस प्रोटोन कितने आ गए 143 माइनस 92 इज इक्वल टू 51, ठीक है। एम ही इतने कैलकुलेट कर लो, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटोन कितने आ जाएंगे 141 माइनस 90, ये भी कितना आ जाएगा 51। आई गल समझ। तिना जो डिफरेंस है जो ब्लू कलर नाल कर रहे हैं ये सेम आ रहा है, इट मीनस इन्होंने दोनों को की कह रहे हैं, आप कह सकते हैं आइसो डायाफर्स, ठीक है। ये 6 टर्म्स ही कंप्लीट हो गई।